So next topic is LUV space. Article 4.6 LUV space. So what is LUV space? Collection of all linear maps from U to V, where UV is a vector space. So the elements of this LUV will be linear maps. Suppose you have two maps. Firstly, I will show that sum of two linear maps is again a linear map. Suppose T and S from U to V. Now same to same, two different linear maps. T2 linear transformations. Now consider the map M, suppose, from U to V, defined by MU is equal to SU plus T. ठीक है, तो M क्या आपका, M is another map. How I am getting M? By adding S and T. इन दोनों को ऐड करें तो एक न्यू मैप बन रहा है, वो M है ना, and I can define it for all U in U. Then the claim is that this M is a linear map. This is the claim. Then M is also a linear map. ये हमारा यहाँ पर claim है, इसको easily prove कर सकते हैं because we have the linearity of S and T. If you will see, somebody ask prove this, तो क्या करेंगे आप? You have to show M of U1 plus U2 is equal to M U1 plus M U2. आप show कर सकते हैं easily देखें, क्योंकि ये define है in this way. This I can write. P of U1 plus है ना? अब S and T are linear. linearity operate करेंगे like this. Okay, and now this is what this I can combine. So this is like S of U1 plus U2 and T of U1 plus U2, है ना? और अगर इसको आप सेपरेट कर लें, सिमिलरली ऑल्सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड अब ये निकालूं, व्हाट अबाउट दिस, देखिए तो M of U1 मीन्स व्हाट, S of U1 plus T of U1. चलो पहले T लिख लो फिर अरेंज कर लेंगे. T लिख देते हैं, S of U1 plus T of U1 plus S of U2 plus T of U, है ना? इसे अरेंज कर सकता हूँ मैं, इसे इधर ले आइए, टेक दिस साइड, तो S of U1 plus S of U2 plus T of U1 plus T of U2. T of U2. इसके इक्वल आ गया ना ये? Yes sir. LHS equal to R. हाँ, सिमिलरली अल्फा के अल्फा अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, M of अल्फा U1 ले लें, तो इट विल बी कमिंग अल्फा MU, अल्फा SU1 plus अल्फा TU1. तो सिमिलरली आ जाएगा. So it means what? This implies that sum of two maps is again a linear map, है ना? This implies Yes, that sum of two linear maps is again a linear map. तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ? Because I want to show that this is a vector space, and if you want to show some set is a vector space, what you need? What the things you need? सम दो चीज का अगर आपको वेक्टर स्पेस शो करना है किसी सेट को, तो क्या चाहिए उसके अंदर? दो ऑपरेशन, सम ऑफ टू वेक्टर्स, टू ऑपरेशंस है ना, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो इफ आई वांट टू शो दैट इट इज अ वेक्टर स्पेस, आई नीड टू ऑपरेशंस. एक ऑपरेशन तो मुझे मिल गया, क्या? सम ऑफ टू लीनियर मैप्स. हमने देखा कि इट इज लीनियर, है ना? ऐसे ही मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफाइन कर सकता हूँ. सिमिलरली scalar multiple of a linear map, scalar multiple of a linear map.
How I will define it? I will define P from U to V such that P of U is equal to alpha times S of U. In this way I will define. तो प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि जितने मैप्स हैं उन मैप्स में अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो स्टिल इट विल बी अ लीनियर मैप। इसे भी हम शो कर सकते हैं, इसे भी शो कर सकते हो, देखो कि ये भी लीनियर है। लीनियर मैं क्यों शो कर रहा हूँ? क्योंकि आई नीड क्लोजनेस, है ना। क्लोजर Yes, प्रॉपर्टी sir. क्या होगी कि अगर टू मैप्स लीनियर है, उनका सम भी लीनियर है, तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपके पास आ गया कि अगर कोई दो मैप लीनियर है, अगर एस टी बिलोंग्स टू एल यू वी, देन एस प्लस टी आल्सो बिलोंग्स टू, ये हमने शो किया यहाँ पे। सिमिलरली प्रोडक्ट अगर हम शो करना चाहें तो पी ऑफ यू वन प्लस यू टू विल बी व्हाट, अल्फा टाइम्स एस U. u1 plus u. अब s is linear, so you can write alpha as u1 plus su, and because s is linear, so I can take alpha inside, है ना, so I can write alpha as u1 plus alpha as u, ये लिख सकते हैं हम, U2. because v is a vector space, तो alpha of u plus v, C. U1. अब ये क्या है, alpha as u1 is pu1 plus pu, and similarly p of alpha u1 is alpha pu, so it means this also belongs to L, है ना। So this implies that if you have P belongs to L U V, क्योंकि इससे क्या मतलब हुआ कि P is linear, और अगर लीनियर ट्रांसफॉर्म है तो ये कहाँ जाएगा, ये भी L U V में जाएगा, बिकॉज L U V is what, L U V क्या बताया मैंने आपको, Vector space में पूरे से अगर आप लिखेंगे variable तो you will write T all T such that T from U to V is a लीनियर मैप, है ना, ये है। तो अगर T इसके अंदर है तो सारे ऑल द मैप्स फ्रॉम U टू V, सपोज इट इज U, इट इज V, इट इज U, तो यहाँ से आपके पास U टू V, हाउ मैनी लीनियर मैप्स यू कैन डिफाइन, बताइए कितने कर सकते हैं, infinite. इनफाइनाइट, बहुत सारे लीनियर मैप्स बना सकता हूँ मैं, बनाते चले जाइए, है ना। तो यहाँ Yes, बीच में sir. क्या हुआ ये कि ये हमने ले लिया कि अगर यहाँ से कोई मैप, एक सपोज ये S था, ये T था, तो यहाँ आपने क्या लिया, LUV बनाया, अगर मैंने LUV, तो LUV में क्या आएगा, S भी आएगा, T भी आएगा, TV आएगा. इसका सम भी आ रहा है, आपने देखा भी, और प्रोडक्ट भी आ रहा है ना। Yes, अगर हम sir. देखें तो एक प्रोडक्ट भी आ रहा था, यहाँ पर P भी आ रहा है, ये सब इसके अंदर आ रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे हैं। दीज आर आर लीनियर मैप्स जो U को उठा के यहाँ V में पहुंचा रहे हैं। सो बिकॉज इट हैज टू ऑपरेशंस, हमने देखा इट हैज टू ऑपरेशंस, वेक्टर एडिशन एंड, वेक्टर मींस एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, एंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, ये इसमें डिफाइन है। तो अंदर these टू ऑपरेशन LUV फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें LUV में जीरो मैप भी है, यू हैव जीरो मैप, जीरो फ्रॉम U टू V, यहाँ पर अगर एक मैप में जीरो मैप ले लूंगा, ये तो जीरो मैप होगा, जीरो मैप लीनियर होता है नहीं, बताइए, जीरो ऑफ U प्लस V इज हाउ मच, जीरो, 0. so zero map is always linear map, you know, we have I think done this thing already, क्योंकि ये सब जीरो, तो जीरो बिलोंग करेगा इसके अंदर, और माइनस फॉर एवरी एस, माइनस एस इज आल्सो अ लीनियर मैप, तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी है। तो दिस LUV इज कॉम्यूटेटिव ग्रुप, एस डॉट टी विल इक्वल टू T डॉट एस, है ना,
यहाँ पे डॉट ले रहा हूँ मैं, कंपोजिशन नहीं है ना, तो आई एम टेकिंग दिस. So this is a commutative group and rest properties also hold. कौन सी? Alpha of s plus t should equal to alpha s plus alpha t and alpha plus beta s. This will equal to. You can S plus verify it. beta. ये आप verify कर सकते हैं very easy. So कोई ऐसा tough चीज नहीं. This will equal to alpha beta s. This will be. और एक last property क्या थी? 1 dot s. So all the properties are there. है ना? तो ये विद रेस्पेक्ट टू एडिशन है, ध्यान रखना. ये प्लस टी एक्चुअली, एस प्लस टी इक्वल टू टी प्लस एस, है ना, बिकॉज वी आर फॉर्मिंग अ कॉम्यूटेटिव ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन. वेक्टर स्पेस क्या होता था? अबेलियन ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड दीज प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा. So all the properties are there. So it means what you can say, it's a theorem that LUV, that means collection of या सेट ऑफ भी कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम U to V. ऑपरेशन कौन से हो गए? विद द बाइनरी. बाइनरी ऑपरेशन है ना दोनों ये, Yes, sir. विद द बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड. ये जो अभी अपने डिफाइन करें, एडिशन ऑफ लीनियर मैप्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन as defined previous. ये जो मैंने डिफाइन किया, इस तरीके से आप एडिशन डिफाइन करेंगे एंड इन दिस वे यू विल बी डिफाइनिंग स्केलर, है ना. ये दो ऑपरेशन, दिस फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस. ओके, तो अगर ये प्रूफ करने के लिए आता है, वैसे तो आपके तो ऑफलाइन ऑनलाइन में क्या प्रूफ होगा, लेकिन प्रूफ में अगर ये क्वेश्चन होता है तो जो मैंने आपको यहाँ करा है ये सब प्रूफ में, असाइनमेंट में प्रूफ में पूछ सकता हूँ ये चीजें. तो यू हैव टू प्रूफ, पहले ये ऑपरेशन दिखाएंगे आप और फिर आप प्रूफ करेंगे कि दिस इज फॉर्मिंग एन कम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट एंड देन दीज प्रॉपर्टीज होल्ड्स ट्रू. ओके. Yes, sir. हाँ, अच्छा, बिकॉज वी आर डीलिंग विद रियल वेक्टर स्पेसेस, तो ये LUV भी आपका रियल वेक्टर स्पेस है. एज आई टोल्ड यू कि आई एम टेकिंग ऑलवेज U एंड V आर रियल वेक्टर स्पेसेस है, आपके सिलेबस में रियल वेक्टर स्पेस ही. तो दिस LUV विल फॉर्म अ रियल वेक्टर स्पेस. तो इसके LUV के एलिमेंट्स क्या होंगे? क्या एलिमेंट्स हैं इसके? लीनियर मैप्स, है ना. Yes, sir. यहाँ के एलिमेंट्स वेक्टर्स नहीं है जैसे RN या VN में दिख रहे थे. इस स्पेस के एलिमेंट्स हैं आपके लीनियर मैप्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अच्छा, अगर ये वेक्टर स्पेस है तो इट विल बी हैविंग सम डायमेंशन आल्सो. तो डायमेंशन तो आपका डिफरेंट चैप्टर में उसका प्रूफ नहीं है, बट डायरेक्ट इसकी डायमेंशन का रिजल्ट है. डायमेंशन ऑफ LU, V इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ U क्रॉस डायमेंशन ऑफ V. ठीक है, ये डायमेंशन का फॉर्मूला है. अगर आपके पास LUV सपोज V3 to V2 है या V3 to V3 है, तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी इसकी? 9. 9 हो जाएगी, है ना, बाय दिस. तो एक डायमेंशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, तो कोई प्रॉब्लम आपकी आ सकती है.
प्रॉब्लम सेट 4.6 में कुछ प्रॉब्लम्स हैं. First problem. Let the linear maps, the linear transformations T from V2 to V2 and S from V2 to V2 be defined by x1 plus x2 comma 0. ये टू मैप्स हैं. इस मैप का नाम क्या हुआ है पता है किसी को? What is the name of this map? I have told you already. What is the map? When your Projection. one vector is 0. Yes. इसे कहते हैं projection map. So you are projecting your x1 x2 to a x-axis, है ना? Yes. It is called projection map. ये two maps given है आपको to determine the linear transformations 2s plus 3t and 3s minus 7. ठीक है, कर सकते हैं इसे इजीली भाई. एक पार्ट कर दे रहा हूँ, चलिए. तो 2s plus 3t हमें ये मैप निकालना है. तो ऑफ कोर्स यू नो कि ये जो मैप है s plus 3t ये भी v2 से v2 ही होगा, हमने भी देखा है ना. दिस आल्सो बिलोंग्स टू l of v2. if t and s v2 to v2 तो इनका सम और मल्टीप्लिकेशन they all are belonging to v2 to v2 and they will be linear map. so if you want to find it you can find. क्या करेंगे यहाँ पे, क्या होगा इसका डोमेन x1 x2 है ना. so you can write, you can move it here. now s x1 x2 is how much? and plus 3. सॉरी ये कितना था, ये 2x1 था. अच्छा 2x1 कम. पहले कोई बात. so 2 of 2x1 plus 3 times common. Up to you can move inside and then component wise addition. So how much you will be getting? 4x1 plus 3x1, 7x1 plus or 6x2. 3x2 ना. Yes, so 3x2. and now 2 3 the 6x1 ये तो 0 है तो 6x1 plus 8x2. So 8x2. it is the map of sum. Okay, First, in the same way you can define this. Second problem भी you can do and similarly third problem कुछ सेम प्रॉब्लम्स हैं. सेकंड में मैप आपको डिफाइन नहीं करके स्टैंडर्ड बेसिस की इमेजेस दे रखी है. तो वहाँ पे एक स्टेप ज़्यादा ये है कि आपको मैप पहले बनाना पड़ेगा. ठीक है, प्रॉब्लम देखेंगे आप तो उसमें कर लेंगे, समझ में जाएगा. इसे अपनी होम असाइनमेंट कॉपी पे कीजिएगा आप प्रॉब्लम्स को. एक और प्रॉब्लम है इसमें 6 प्रॉब्लम. लेट t from v1 to v1 be a non-zero linear transformation. Non-zero linear transformation. ठीक है, नॉन जीरो यानी कि t कैन नॉट बी जीरो. देन प्रूव दैट
L of v1 is equal to span of t, यानी कि कोई भी लीनियर मैप अगर आप ले लें v1 से v1, ये स्पैन कर देगा t को। कैसे करें बताइए? अभी एक डायमेंशन का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या था? इससे 1+2 हो जाए 1 है ना। और इसका मतलब क्या minus हुआ कि इसकी डायमेंशन क्या है? 1 है इस स्पेस की। तो अगर किसी स्पेस की डायमेंशन 1 होती है, जैसे v1 होता, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके बेसिस में एक ही एलिमेंट होगा। दैट मीन्स a single vector will be spanning the whole set, और क्या होगा? इट मस्ट बी नॉन 1 जीरो, 0. है ना। so because its dimension is 1, so Yes, sir. this implies that L v1 comma v1, जैसे लिखते हैं ये, it will be spanned by a single, है ना, तो its dimension is 1, तो यहाँ लिख सकते हैं this implies that this single element t is a, क्या है ये? basis, 1 0. Yes, sir. is a basis for, इसे मैं बेसिस कह सकता हूँ क्या? यस, क्योंकि टी क्या दिया हुआ था आपको? नॉन जीरो। 1 0. अगर नॉन जीरो है तो ये बेसिस बनाएगा, एंड इफ इट इज फॉर्मिंग अ बेसिस तो ये स्पैन भी करेगा। तो जो एल वी वन होगा, किससे स्पैन हो जाएगा? इस सिंगल लीनियर मैप से। ओके, तो यहाँ इस फॉर्मूले से हमने इजीली कर दिया। बताइए। नेक्स्ट टॉपिक भी है कंपोजिशन ऑफ लीनियर मैप्स। लास्ट टॉपिक है ये आपका, कंपोजिशन। You must have studied composition, right? If you have two maps, suppose T from U to V and S from V to W. For defining the composition, the codomain of one map should be domain of another. Domain of Then only I can define the composition. Composition अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे? S composition T, है ना। T U to V है, ये V to W है, तो कंपोजिशन कैसे आएगी आपके पास यहाँ पर? अगर हम कंपोजिशन करेंगे S कंपोजिशन T, ये कहाँ से कहाँ होगा? इसका डोमेन तो जाएगा जो T का डोमेन है, और कोडोमेन होगा जो S का कोडोमेन। क्योंकि पहले एलिमेंट ऑपरेट होगा T पे, तो इट शुड बी डोमेन ऑफ T। तो ये इस तरीके से होता है कि T U to V and S V to W. So what we take S composition W, है ना। yes, sir. U to V T है and V to W S है, तो आपका U to W will be S composition T। T composition S नहीं होगा यहाँ पे। I cannot define T composition S। देखो T composition S अगर आप लिखते हैं तो S फर्स्ट इज S, तो S का डोमेन तो V है, Yes, sir. है ना। लेकिन अब मैं V to Domain W नहीं W. लिख सकता क्योंकि यहाँ पर W है इसका कोडोमेन, लेकिन Codo. इसका डोमेन U है, तो आई कैन नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे आई कैन नॉट राइट, आई कैन नॉट डिफाइन T composition S। I can define as composition T because this is common. So for defining the domain of first map and the codomain, sorry, the codomain of first map and domain of second should be same.
है ना, दिस इज नॉट डिफाइंड। Yes, sir. अगर ये सेम से सेम होगा तो कर सकते हैं, ये मान लो वी टू वी होता, ये भी वी टू वी होता, तो कर सकते हैं। दिस इज Yes, कॉल्ड sir. तब दोनों कंपोजिशन। कंप्लीशन हाँ, दिखाना था। दिस इज कंपोजिशन। So how we define composition? केवी लिंगर में प्रोग्रेस। So we define it by S composition T U, है ना, U आएगा एलिमेंट इसके डोमेन, बिकॉज Yes, sir. इस डोमेन इज U। तो हाउ टू डिफाइन S ऑफ TU, ऐसे लिखेंगे एलिमेंट, मींस फर्स्टली यू विल राइट द इमेज ऑफ TU, तो जो इमेज आएगी वो क्या आएगी, कुछ V आएगी, फिर उस V की इमेज लिखेंगे वो W में चला जाएगा। ये तो हो रहा है। तो जो आप यू आर हेयर, यू आर गोइंग बाय टू पाथ्स, यहाँ पर सिंपल बाय दिस कंपोजिशन यू कैन राइट इन अ सिंगल। ओके Yes, sir. यार, लास्ट 10 मिनट में नेट चला जाता है हमेशा, आज तो जाना चाहिए, अभी तो आ रहा है। चलिए, so now again our claim is what, that this composition 2 map, it is also a linear map. This is linear provided T and S are linear, है ना। If two maps are linear, then their composition is also Composition. linear map. Linear. ये रिजल्ट है, इसे आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे अभी हमने शो किया पीछे कि अगर मैं एस कंपोजिशन T U1 plus U2 ले लूं, दो एलिमेंट, तो बाय द डेफिनेशन फर्स्टली इट विल गो विद T, T of U. है ना, एंड बिकॉज T Yes, इज sir. लीनियर, then what T will happen, U1 I plus can write, U2. है ना, यहाँ आप लिख देंगे since T is linear, now S is, S is linear. हाँ, तो S को I can shift, S is linear, तो it is again some vector V1 V2, तो it will be go with Mhm. S of T U1 plus S of T U, U2. since S is linear, and now what is this ST U1, ये तो S composition T है, plus S composition T U, ठीक है। Yes, sir. Similarly, S composition T alpha U1 you can write. So by the definition, it will go with alpha U1, and since T is linear, so it will be alpha Alpha T U1. E U1, and because S is linear, so alpha can come Alpha. outside S of T U1, and this is what, Composition. alpha times S composition T. ये तो हो गया by definition, ये आ गया T is linear, every time you have to write the reason, S is linear or this is, so this implies that S composition T is also linear. Okay. Yes, sir. देखिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये, 4.29, page 132. Let a linear map, a linear transformation T from V3 to V4 be defined by T of E1 is, क्या होंगे इमेज यहाँ पर, 4 टपल्स होंगे, है ना, यहाँ ट्रिपलेट, Yes, sir. तो E1 का मतलब क्या है, 1 0 0, 1 0 0. हाँ, यहाँ ध्यान, यहाँ पे बिकॉज यू हैव टू वेक्टर स्पेसेस, लेकिन इफ दे आर यूजिंग E1 फॉर डोमेन, तो अंडरस्टूड है E1 इज 1 0 0, है ना, 1 0 Yes, sir. 0 0 0 नहीं होगा यहाँ, क्योंकि ये डोमेन का V3 E और TE2 is 1 -1 1 0, TE3 is
0 -1 1 1, ठीक है, वेयर E1 E2 E3 is the standard basis for V3 and let a linear map, a linear transformation S, दूसरा हमने S करा डिफाइन, अब V4 to V2, V4 ये V4 से V2 लिया है, यानी कि जो इसका कोडोमेन है वो डोमेन, ये डिफाइंड है। सपोज एस ऑफ, अब इसका मुझे स्टैंडर्ड बेसिस देता, E1 तो मैं यूज कर चुका हूँ, सपोज F1 कह देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नोटेशन डिफरेंट होनी चाहिए, बट F1 का मतलब स्टैंडर्ड बेसिस है V4 की, स्टैंडर्ड बेसिस है। इसकी इमेज दे रखी है 1 0, इट इज गिवन 1 1, SF3 is given 1 -1, SF4 is given 0 1, ठीक है, where F1 F2 F3 F4, this is the standard basis for V4। V4 तो अंडरस्टूड है, F1 का मतलब क्या होगा 1 0 0 1 0 3 बार। हाँ। तो अगर हमें एस कंपोजिशन T डिफाइन करना है, द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस कंपोजिशन T क्या होगी बताइए? V3 to V2 V2 होगी, जाहिर है ना, कि V4 आपको फॉर बना गया ये, तो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? S of T कैन बी ऑब्टेन, इसको आई कैन फाइंड हाउ, देखो अब अगर मैं एस कंपोजिशन T यहाँ पर E1 लूंगा, क्योंकि मुझे अगर स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट्स की, बेसिस एलिमेंट्स की इमेज मालूम हो तो हम मैप फाइंड कर सकते हैं ना, ये रिजल्ट कराता है। तो एस कंपोजिशन T E1 को आप क्या लिखेंगे? एस ऑफ T E1 है ना, और एस ऑफ T E1 कितना हो गया? T E1 इज हाउ मच? 1 1 0 0 0 0। अब ये क्या है, हमारे पास मैप तो नहीं गिवन है, एस गिवन है, लेकिन क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस था तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ? बताओ ये क्या है? 1 1 0 0, तो ये क्या होगा? अगर ये F1 है और ये F2 है 0 1 0 0, तो F1 प्लस F2 क्या होगा? 1 1 1 0 0। बिकॉज आई डोंट हैव मैप बट आई हैव द इमेजेस ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस एलिमेंट्स, इससे मैं ये लिख सकता हूँ, और ये हमें मालूम है एस लीनियर होता है, तो दिस विल बी व्हाट? एस ऑफ F1 F2 एस F1 की इमेज ऑलरेडी आई हैव, 1 0 एस F2 की आई हैव, 1 क्या आ गई है? 2 1, ये इमेज निकल कर आ गई। समझ में आया भाई? यस सर। सिमिलरली E2 भी निकाल सकते हैं हम, तो सिमिलरली एस कंपोजिशन T E2 है ना, सेम रूल विल अप्लाई, एस ऑफ T ऑफ E2 और एस ऑफ T E2 विल बी हाउ मच? क्या गिवन था? 1 -1 1 0, ये क्या होगा बताइए? एस F1 माइनस F2 प्लस F2 वो 0 को लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, बिकॉज एस इज लीनियर, एस ऑफ F3, इसकी इमेज आप लिख लीजिए, तो एस ऑफ F1 इज 1 0 1 0 था, यस सर, एंड प्लस, तो हाउ मच इट इज कमिंग? 1 -1 1। Similarly, as composition T E3 will be coming 0, -1, and as composition T E4 will be coming how much? It is coming, देखिए कुछ नहीं, देखिए बस 3 ही आएंगे यहाँ पर, तो कोई 4 E4 कहाँ है? 3 एलिमेंट्स तो हैं, B3 है तो, है ना। So in this way you can find the images। अब अगर आपको इमेजेस पता है तो आप मैप भी निकाल सकते हैं, यू नो।
अगर इसके आगे होता कि मैप निकालिए तो यू कैन फाइंड द मैप आल्सो, है ना। So it is the way you can construct this and you can find. तो इसको कभी कभी we, now मैं लिख दे रहा हूँ, we can find as composition T x1 x2 x3 also. कैसे करोगे इसे, वो जो तरीका बताया था, x1 e1 x2 e2 plus x3 e3। अब यहाँ पर आप लिख देंगे, पता है ना, as composition T e2 plus x3 as composition T e3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, e1 कितना आया था निकल के 2,1 प्लस यस सर। x2 1, -2 प्लस x3 0 क्या जाएगा देखिए 2x1 प्लस x2 x1 -2x2 एंड